मेरी भी। आजा निशा, आजा आजा इधर आजा आजा सामने आ जा। हमेशा टाइम से आते हैं। हैप्पी रिटायरमेंट डे हो गया तो नहीं आगे नहीं बढ़ते। अनुराग भैया वो लगा दो फटाफट, फोटो खींच लेंगे ना वो। हेलो और वो तो स्वीट 16 ही कर रही है भाई। से ज़्यादा टाइम तो ये है। हाँ जी सर क्या कह रहे हैं? भाई आप साथ में अभी नहीं, अभी हम अच्छे नहीं, हमको कर लो, आप लोगों की सारी सेम हो गई ना। बाद में थोड़ा सा मैटर करेगा अभी तो। हेलो मैम, मैम इधर देखिए। आप ऐसा करो, अनुराग से ये 2 से हो जाएगा। थोड़ा सा एक एक करके करा लो, एक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एक करके ही ज़्यादा अच्छा रहा वो क्या दो के ओके सर। ये ऐसे ही है ना? थैंक यू। मम्मी मम्मी वेट मैम, आइस ब्लॉक। ओके मैंने बाहर से सब कुछ बोल दिया। ओके ठीक है। जब पापा पास जाओ। एक सेकंड ना। ओके थैंक यू। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की
कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। हम जाए कहीं इनकी। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार, आती रहे खुशियों की बहार, रखकर मंजिलों की ओर करे तालियों के साथ वेलकम। जोरदार तालियां मीनाक्षी मैम और उनके सभी मेंबर्स के लिए। Thank you very much. A very good morning to everyone present here. I am Nidya Sharma and my co-host is Ms. Asha Sharma ma'am. I extend a very warm and hearty welcome to each one of you. Well, first I would like to thank you all for taking the time out from your heavy schedules and marking this spectacular function with your glorious presence. Today, we all have gathered here as a family to honor, appreciate the most precious and beloved member of this school is a new baby. It's a relentless cycle seeing every aspect of our life. This is not a farewell. To my friend Meenakshi ma'am, it's a big name, who has been so cherished to all of us. Her dedication, sincerity towards work has been commendable. She has been tirelessly working for the upliftment of this institution since 25 years. When I came as a fresher in this school, I saw the maths faculty always sitting together
working hard to take out grades for best results. They all enjoyed their work, and the laughter gave me an inspiration to enjoy every moment of life. Meenakshi ma'am, one of the part of our maths faculty, who is the senior most, but never looks so. By looking at her, no one can guess her age. Well, I was surprised that she is getting retired today, and she has not yet opened her secret of youthfulness, her fitness, we don't know. Yes, today I hope she opens her Pandora box of her secrets, how she is so fit today also. So, now, we welcome their family members who are the most important part of her life, and I would like to welcome ma'am's husband, Mr. Vikas Bhatia. Thank you, sir, for joining us. And her daughter, Rachel, thank you. And son-in-law of Meenakshi ma'am, Ankit ji, most welcome. And also, they have been joined by their daughter-in-law, Ranjita ji, and sister-in-law, Anju Singh ji, and mother-in-law of their Shobha Goyal ji. And most also important one person who has joined us today is Meenakshi ma'am's Masi ji, Gayatri Khurana ji. Her most important introduction which I would like to give is she was also the principal of this school. So for us, this is a very glorious moment that Gayatri ji has joined our school. And we are very, very much thankful to her for joining this school, and would definitely like to look after her to see what changes she has seen in this school. Definitely at that time the school was not so good in building and aspects, but definitely the results would have been better. And I hope her friends have also joined. I think so Vipin ma'am, who has retired yesterday, and she has also joined our Meenakshi ma'am's retirement. So we are thankful to Vipin ma'am too for joining today's retirement party. And all our dear friends, we are thankful to all of you who have done the commendable job to make this event a spectacular event. Over to Ashok. मैं स्वागत करती हूँ उनके डॉक्टर नीरज सिंह का, और आप सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत है, और आदर है, सम्मान है, चंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं अब अपनी प्रधानाध्यापिका महोदया के लिए कहना चाहूँगी, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है, आप आए, रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं हम, बड़े नसीबों वाले हैं हम, जो आप हमारी प्रधानाध्यापिका हैं, जो आप हमारी प्रधानाध्यापिका हैं। मैं अपनी प्रधानाध्यापिका को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो सभी अतिथियों को लगाम को देकर के उनका स्वागत और सम्मान करें। प्रधानाध्यापिका महोदय और मीनाक्षी मैम सर। Our HOS ma'am really needs an introduction. So please welcome her with a round big of applause. एक बार जोरदार तालियां हमारे HOS ma'am के लिए। मीनाक्षी मैम, आपका आते दिल से स्वागत है। Please come on stage. Now we would like to welcome Meenakshi ma'am's husband. Akshana ma'am, please come on stage. आने वाला
जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं और मेरे साथी एक गीत प्रस्तुत करते हैं। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। खाको मिले को चाहे मुलाकात तो होगी। खाको
बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में वो चाहे मुलाकात तो होगी, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के जनाबों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में वो चाहे मुलाकात तो होगी। धन्यवाद। Meenakshi ma'am's friend Jyoti. Jyoti ma'am, please on the stage. Please give a round of applause for our HOS ma'am. Please, all the staff members. जिनके जीवन में लोग अजीज होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, हर पल खुशी का उत्सव मनाते हैं जो, असल में वही लोग खुदा के करीब होते हैं। खुशियों भरे इस शानदार पलों के बीच आज के सेवानिवृत्ति विदाई समारोह की सूत्रधार श्रीमती मीनाक्षी भाटिया के परिवार से आए सभी सदस्यों, हेलो दोस्तों और उनके जीवन साथी श्री विकास भाटिया जी का हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हम स्वागत और अभिवादन करते हैं। तो मेरे साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी तालियों का साथ बनाए रखें, क्योंकि मैं आप सबकी तरफ से ये अपने भाव प्रकट कर रही हूँ। इस परिवार का इस विद्यालय को संभालने में बहुत योगदान है। विकास सर की मदद भी इसी विद्यालय से कार्यरत होने के बाद रिटायर्ड हुई। उन्होंने भी इस विद्यालय को संभालने में अपना योगदान दिया। मीनाक्षी मैम ने लगभग 25 साल, जुलाई में सिल्वर जुबली पूरी हो जाती मैडम की सेवाओं की इस विद्यालय में, पूरे 25 साल इस विद्यालय को संभाला है और इस विद्यालय की फाउंडर प्रिंसिपल खुराना मैडम आज हमारे साथ हैं, वो भी मीनाक्षी मैम के परिवार से ही संबंधित हैं। तो इस परिवार ने इस विद्यालय को बहुत बहुत संवारा है, इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपके परिवार के इस योगदान के लिए हम सभी तालियों से अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। तो जरा जोरदार लगातार तालियों से आप जरा इन तक हम सबका धन्यवाद पहुंचाएं जो इनके परिवार की तरफ से इस विद्यालय को योगदान मिला है।
हमारी प्यारी मीनाक्षी मैम, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस एक नाम के हजारों इंसान हैं। मैडम 25 साल पहले इस विद्यालय में आई, लेकिन हमारे विभाग में मैडम ने लगभग 37 साल से योगदान दिया है। और उस यंग एज में मैडम जिस जोश के साथ काम करती रही होंगी, 37 वर्षों के बाद भी मैडम आज भी उसी जोश से विद्यालय में पढ़ाती रही हैं। मैं जब भी राउंड पर जाती थी, 10th और 12th के हम थोड़े ज़्यादा राउंड लेते हैं, मैं जब भी राउंड पर जाती थी, मैंने मैडम को कभी कक्षा में पढ़े हुए बैठे हुए नहीं देखा। मैडम हमेशा चौक के साथ ब्लैक बोर्ड पर और बच्चों के साथ कनेक्टेड दिखाई देती थी। तो इस तरह की टीचर का होना उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, जो लगातार उनके साथ मेहनत करती रहती थी। मीनाक्षी मैम सीनियर टीचर्स की दोस्ती के साथ साथ हमारे यंग टीचर्स को भी उसी दोस्ती का और अपनेपन का एहसास देती रही हैं। मैडम का सेंस ऑफ ह्यूमर छोटे छोटे सेंटेंसेस से हमें आनंदित करता रहा है। अभी कल मैडम ने ग्रुप पर डाला कि कोई छुट्टी नहीं करेगा और तुरंत ही धीरज सर का छुट्टी का मैसेज आ गया और मैडम ने उसके ऊपर कमेंट किया, ये बच्चे कभी नहीं सुनते। पढ़ने के बाद मैं अपनी मुस्कुराहट को घर पे भी रोक नहीं पाई। अभी फेयरवेल हो रही थी, मैडम का नाम बुलाया गया। जब बच्चे ग्रीटिंग्स दे रहे थे तो मैडम ने आते आते एक सवाल बच्चों की तरफ उछाला और हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सवाल था, एक मैथ्स टीचर क्या करे बच्चों की फेवरेट बनने के लिए। तो इस तरह मैडम का वो खूबसूरत सेंस ऑफ ह्यूमर हमें समय समय पर दिखता रहता है। मैडम मेरी जाते वक्त रिक्शे की साथी है, रिक्शा फ्रेंड है मैडम मेरी। इसके बाद बीच में ऐसा हुआ कि मैडम ने रिक्शा छोड़ने की बहुत कोशिश की। थोड़े टाइम के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नाम पर विद्यालय छोड़ने की बहुत कोशिश की। मैंने जाने नहीं दिया। अच्छे लोगों को कौन जाने देता है भला। तो आज उसी का रिजल्ट है कि आज का ये उत्सव हम सभी मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं। मैडम का इस विद्यालय में बहुत लंबे समय तक साथ रहा है, जिससे ऐसे व्यक्ति के लोगों के दिलों में भावनाओं में जड़ें बहुत जम जाती हैं। उनसे विदा होना एक अनोखी घटना बन जाता है, एक यादगार इतिहास बन जाता है। मैडम के सुंदर व्यक्तित्व की हमें हमेशा बहुत याद आएगी। मैडम के इस सफल सेवा काल के लिए हम मैडम को और उनके परिवार को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। अब मैडम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और हम उनके स्वास्थ्य, उनकी खुशियों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अब एक दोस्त के तौर पर मैडम के लिए कुछ पंक्तियां हैं जो मैं सुनाती हूँ। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, ना जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारी
जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। वो जिम्मेदारी जल्दी उठने की, नहाने की, समय से विद्यालय जाने की, छात्राओं की उपस्थिति कम होने पर परेशान हो जाने की, सरप्राइज इंस्पेक्शन को सफल बनाने की और अथक प्रयासों के बाद भी कभी कभी मनचाहा रिजल्ट ना आने की। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी आज, साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज। इन सबसे छुटकारा पाने की घड़ी आई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? ना जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। धन्यवाद। I would like to welcome Meenakshi Ma'am's daughter and her son-in-law. Daughters are the precious gift of God who always support her mother in every phase of her life. Meenakshi Ma'am's Nandhi Pari has also joined us today, and so I'd like to invite her and her husband to say a few words for her mother and Ankit Ji's mother-in-law, because Ankit Ji must have seen different faces of her mother-in-law till date. So please share our thoughts. अच्छा ऑर्गेनाइज किया है मम्मा के लिए। तो हम लोग बस कुछ जनरल बातें आपसे शेयर करेंगे। मोस्टली बातें आप सबको पता है, बट हम अपने जो हमने एक्सपीरियंस किया है घर पे रहते हुए वो शेयर करेंगे। एक चीज़ तो हम लोग भी स्टाफ रूम में डिस्कस कर रहे थे कि इनकी छुट्टी की समस्या कभी खत्म ही नहीं होती थी। जब भी एक मिनट में ये लगता था अरे मेरा संडे बीच में आ जाता, अब मैं कैसे छुट्टी लूँ, अरे कल इंस्पेक्शन है आज छुट्टी कैसे लूँ, मतलब कोई ना कोई इनकी वो चलती रहती थी, जिसकी वजह से इनको छुट्टी लेने में इतनी घबराहट होती थी। बट फिर भी चलो किस तरह प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सपोर्ट किया और ये हमारे लिए छुट्टियाँ ले पाए। मतलब इतना जैसे जैसे मैंने इनके टेन्योर को मतलब बढ़ते हुए देखा है। जब हम लोग छोटे होते थे तब मम्मा आई थिंक 1:30 बजे स्कूल से आ जाते थे। आई थिंक उससे पहले तो कभी कभी 1 बजे का भी रहता था। तो धीरे धीरे इनका स्कूल टाइमिंग बहुत बढ़ता गया और मैंने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती देखी। पर इन्होंने हमेशा मतलब अपने घर के साथ साथ अपनी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बखूबी निभाई है। बहुत टेंशन लेती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो जैसे प्रिंसिपल मैम ने भी कहा कि वो सारी टेंशन से आज इनकी जुदाई है। तो दैट इज़ द मोस्ट हैप्पी पार्ट कि एटलीस्ट अब इनकी वो टेंशन तो नहीं सकती, कोई ना कोई और टेंशन तो ये लेती रहेगी। तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो अंकित का भी कुछ ऐसे है, अंकित अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि इन्होंने क्या क्या देखा है इन 8-10 सालों में मम्मा को एज ए टीचर। हेलो आप लोगों का पैकेज में मेरा टेन्योर बहुत छोटा है इनको ऑब्जर्व करने का, बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया इन लास्ट 8-9 सालों में जितना आईटी वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आया है, ऐसे स्कूल के सारे करिकुलम में भी एक आईटी वर्ल्ड का इंक्लूजन हुआ है। तो चाहे वो अपार भरना हो या कोई भी ऐसा आईटी रिलेटेड काम हो जिसमें ये हम लोगों के काम करें कि प्लीज 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मेरा निकालो, मेरा ये काम करा के घर जाओ। और दूसरी चीज हम लोग यूजुअली वीकेंड पे आते हैं मम्मी के पास, 5 दिन हमारे ऑफिसेज होते हैं। तो एवरी सैटरडे सुबह स्कूल जाने से पहले ये इंश्योर ये करेंगे कि गोभी की पराठा उनकी प्लेट में आ जाए। सो इट वाज लवली टू सी हर ग्रो। और लास्ट आई लव इनका जो ये रील गैंग है, क्योंकि इस लास्ट के टेन्योर में जो ये यंग क्राउड आया है और इन्होंने जो मम्मी को ये इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया में फेमस कर दिया है,
तो kudos to you guys. तो इन्हीं सबको दर्शाते हुए I have written few lines. मतलब I'm not very good at writing, but I have tried. तो it goes like this. हो सुबह की पहली किरण, चाहे वो ढलती शाम, बिना रुके बढ़ती चली आए, वो है मेरी मोह। नींद हो ना हो पूरी रात की, सुबह बड़ी अपने बच्चों का आलम, खुद की चाय चाहे रह जाए अधूरी, पर घर वालों के खान पान पे नो हार्म। आधी स्कूल लाइफ बीती ये करके विचार, किसी तरह छुट्टी बच जाए इस बार। बहाना मारना तो जिंदगी में ना ही नहीं पाए, बहुत ही सीरियसली लिया बचपन के लेसन को कि वन शुड नेवर टेल अ लाई। चाहे कितना ही आए वो उतार चढ़ाव, हंसते हंसते पार करती गई हर पड़ाव। अब ठहरो और करो थोड़ा आराम, नेटफ्लिक्स लगाओ, खाओ आइसक्रीम में काजू बादाम, टेंशन फ्री होकर करो दिल चाहे जो। हमारी विशेष यही है कि बहुत ही हैप्पी आपकी रिटायर्ड लाइफ हो। थैंक यू। At last थोड़ा सा पापा की जान खाओ। जी आपने बहुत अच्छी बातें शेयर करी और जहाँ तक अपार की बात है और जहाँ तक टेंशन की बात है वो मैं इसकी गवाह हूँ, क्योंकि मैं मुझे हमेशा कहती थी कि मिर्जा अपार भरनी है। मैंने तो अपने सारे लोगों को बोल दिया है वो भरेगा मेरी अपार। और टेंशन तो मीनाक्षी मैम बहुत लेते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं हर चीज़ को लेके। हम भी कहते हैं कूल डाउन। पर चलो अब मैम की बहुत अच्छा वाला पार्ट स्टार्ट होगा। Now I would like to welcome Kavita ma'am on stage, and please Sudha Rani ma'am and Kuniki ma'am come on stage to welcome Kavita ma'am, Meenakshi ma'am's friend. Kamla ma'am, please come on stage. Sudha Rani ma'am, please come on stage to welcome Meenakshi ma'am's friend. मैम मेरे को मार्क्स कम। मैम इधर देखिए सामने। आप खुद नहीं जानती आप कितनी प्यारी हो, शान हो हमारी और जान से प्यारी हो। शान हो हमारी, जान से प्यारी हो। दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कल भी हमारी थी, आज भी हमारी हो। आप कल भी हमारी थी, आज भी हमारी हो। अरे मैडम अच्छे से आप सब लोग मीनाक्षी भाटिया कुछ भी कहो, मेरी ये मीनू है, मैं इसको मीनू बुलाती हूँ। इसने मैंने ही स्कूल छोड़ा और इसे ज्वाइन किया। मैं मैथमेटिक्स की थी, ये भी मैथमेटिक्स, और इसने पूरा काल पूरा करके दिखाया। और जितने जो मतलब लोग हैं जो मेरी रिटायरमेंट में थे, जो प्यार मुझे मिला था उससे ज़्यादा प्यार इसकी होती आया है। और क्योंकि ये वही कह रही हूँ कि फैमिली का जो ट्रेंड चलता है वो इसने उसको पूरा कायम रखा। अब मैं अपना अगर 2 मिनट टाइम है तो मैं थोड़ा टाइम है। मैंने 84 में ज्वाइन किया। मेरा बारिश ने स्वागत किया। स्कूल एंट्री था, अभी टेंट भी नहीं लगे थे। मैंने 98 में रिटायरमेंट ली। उस वक्त जो लोग उस वक्त थे वो जान सकते हैं कि स्कूल किस हालात में था। जब मैंने ज्वाइन किया तो 300 बच्चे थे, जब मैंने छोड़ा 3000 बच्चे थे और कंपोजिट मॉडल बन गया था। और हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाते थे, पैरों के नीचे रामदेव में। पर जैसे आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा एक परिवार की तरह स्कूल को स्कूल में समझ के अपना स्कूल समझते हैं। ऐसे ही मेरा स्टाफ भी कभी वो ये नहीं सोचता था कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में, उनको लगता था ये हमारा स्कूल है। तो इन हालात में ही हम लोगों को जिंदा रखते हैं। हम लोग को ज्वाइन
कि जो सब लोगों से मिलने का मौका मिला, इतने अच्छे से आप लोगों ने वेलकम किया। ऐसा वेलकम गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं होता था किसी ज़माने में, और हम तब भी मौका पैदा कर लेते थे किसी तरीके से। और आज का प्रोग्राम देख के आप सबको बहुत 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 थैंक्स। थैंक यू मैडम, ये स्कूल भी आपका है और हम भी आपके हैं। मैम आप बीच में इनकम टैक्स, ITR भरना, ये सब का कैलकुलेशन करना अंजुला मैं भी पूरे स्कूल का देखती थी। तो आज हम टैक्स रिटर्न भरने वाले नहीं है अंजुला में, बस हम आपका स्वागत करने वाले हैं। आज कोई टैक्स की बात। नमस्कार। और हमारा आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से स्वागत किया है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं सपना देख रही हूँ, मैं दिल में हूँ। मुझे सच में महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से आपने मेरी सिस्टर लाल मीनाक्षी के लिए आपके उसके प्रति आप लोगों का इतना प्रेम देकर मेरी आंखें नम हो गई। साथ में प्रिंसिपल जी और आप सब छात्राओं का, बहनों का, बच्चों का, सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कुछ कहेंगे, मैं आगे शुरू करूँ। For my sister-in-law, as she retires, a journey of success. Now she transpires work well done. Memories held dear. A new chapter begins. May joy always be near. Wishing her days of leisure and delight. As she bids farewell to her work life. Cheers to the future. To adventures, a new retirement bliss, just for her to pursue, and I say, cheers, cheers, cheers. मैथ्स की टीचर से डर लगता है, ये बचपन से बड़ी कॉमन सी बात मुझे भी लगता था। उससे जीजा बन जाओ, फिर वो तुम्हें पराठे बना के खिलाएगी, चाय पिलाएगी, और तुम कोई शोक नहीं कर सकते हो, वो मान लेगी। तो उसे डर लगाने का एक यही तरीका। आज का ये दिन जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। इतना प्यार, श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और मीनाक्षी जी के लिए एज ए ब्रदर इन लॉ, और एक ही मुझे शिकायत रहती थी जब हम आते हैं तो छुट्टी, और छुट्टियां उन्हें मिली नहीं बहुत। अब मेजर छुट्टी शुरू हो रही है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि 5 जून को कनाडा पहुंचेंगी, एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। दिस वुड बी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट she would be visiting our house, क्योंकि हम इंडिया में रहे नहीं जब से इनकी शादी हुई, तो इनका हमारे घर आने का कभी सौभाग्य हुआ नहीं, and that time has come. Thank you very much, Madam Principal. आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई, आपकी नम्रता और सब कुछ बहुत सराहनीय है, and thank you so much. आई होप कि स्कूल ऐसे ही तरक्की करता है, और स्कूल से लगाव होता ही है। मैंने बिहार में एजुकेशन ली, बिहार में एक स्कूल है प्रभात तारा स्कूल, और मुझे हमेशा से ये रहा, इट वुड बी आफ्टर 58 years that on this April 1st to 5th after retirement, I also retired last year, I will be visiting my school in Bihar. क्योंकि दिल्ली के स्कूल और दिल्ली की जगह तो मैं आता रहा, देखता रहा, जहाँ पर यादों का कोई ऐसा गैप नहीं बना। बिहार इज प्लेस like Muzaffarpur, where I will be going after 58 years, and I really look forward for that. तो स्कूल का वैसे भी लाइफ में स्कूल टीचर का, और बचपन से जो टीचरें आपको प्यार देती हैं, एक माँ की तरह, बहन की तरह, दोस्त की तरह, and on top of that
कि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स सरप्राइज कि नीरज तू ससुराल में जाके अकेला बीवी के बगैर 1 महीना कैसे रह लेता? That has been a question and many of you might know कि जीजा जी आए हुए लेकिन दीदी नहीं आई है. It has been a common thing और that defines our relation. Thanks a lot. हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मीनाक्षी जी का व्यक्तित्व बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने इतने लंबे समय से अपने बुजुर्गों, अपने अतिथिगण, अपने परिवार और अपने स्कूल को समय और सम्मान देकर सुगंधित किया है। मैं इनकी स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हूँ कि आगे आने वाले समय में इनके बच्चे इन्हें इसी तरह इसे सम्मान और समय दें और इन्होंने अपनी ब्यूटीफुल, सुंदर, स्वीट डॉटर को हमें देके आनंदित किया है। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। Thank you. Thank you, ma'am, for this special song you dedicated to Meenakshi ma'am. तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे अपने ही हमारे लिए इतने अच्छे शब्द होते हैं। तो मीनाक्षी मैम इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड में होंगी, लेकिन टॉप पता ही नहीं चला मुझे तो कि क्या कब रिटायर हो गई है। सुबह के वक्त जब भी याद होगा मैं नॉक कर दी, उठो 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 जल्दी जल्दी उठो, स्कूल छोड़ के जाना है। 30-40 साल में मैं यही काम कर रहा था। कहीं जाना होता था मैं कहता चल पड़ेगा, नहीं स्कूल जाना। मैं कही क्या है छुट्टी, अच्छा अभी नहीं होगी छुट्टी, नेक्स्ट वीक में नहीं होगी, नहीं तो शनिवार जो से याद होता है। यही इतने टाइम से यही सुनता रहा। अब चलो अब थोड़ा सा आराम हो गया। मैंने कल ही इसको बोला कि अब तो आराम से जल्दी मत उठना, मुझे भी सोने देना, आराम से सो जाना। नहीं अभी आप क्या है बतानी आप शुरू करोगे। मैं कहोगी शुरू, मैं नहीं इंग्लिश पढ़नी शुरू हो गई है, चलो कोशिश करूँगा। मैं कहा चलो तू तो रिटायर होगी, मैं है कंपनी डालूंगा। नहीं आप ही रिटायर होगा, आप कुछ बताइए, मैं कब रिटायर होऊंगा। अभी इसने यूएसए और कनाडा जाना, आजकल जो है मेरी रूटीन क्या चल रही है, ये स्कूल से आती है और जब छुट्टी होती है, अच्छा आप आ जाओ मेरे साथ खड़े हो जाओ किचन में, रोटी कैसे बननी है ये देख लो। मैंने कोशिश करी तो कभी टेढ़ी बनी, कभी कुछ बनी, कभी कुछ। भैया प्रैक्टिस कर लो, मैंने कनाडा भी जाना, यूएसए जाना, पीछे से यही करना। मैं कहा यार ये बड़ी सी बात है। फिर अभी कुछ रोटी बनानी सीख गया हूँ, कुछ सब्जी भी बनाई। उस दिन गई हुई थी तो मैंने फोटो खींची सब्जी की, दाल बनाई, तो मैंने उसको भेजी। अभी इसने तारीफ तो नहीं करी, फोन हिंदी में कर ली। कोई बोली इसके लिए घी ज़्यादा लग रहा, मुझे थोड़ा घी कम कर देना। मैं कहा यार खा तो नहीं यार, कभी बोला। और 2 दिन और उसके बाद मैंने बनाई नहीं। मैंने बना था तो मुझे आदमी कर दो भाई। मैं प्रिंसिपल मैम का बहुत थैंक्स हूँ। 2-2.5 साल पहले शायद ही हमारा क्या कहते हैं दिन ऐसा होता था, मैं स्कूल में जाऊँगी, मैं रिटायर हो रही हूँ, मैं BRS से हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं कह यार कुछ टाइम और थोड़ा सा जीने मेरे यार, उसके बाद एक ही बार रिटायर होना ना। तो मैम वेरी थैंकफुल हूँ, आपने पता नहीं इसको क्या पिलाया या क्या रोटी दी। मेरे 6 महीने मुझे समझ ही नहीं कहाँ चले गए। आपने 2 दिन 3 दिन भैया भी करेंगे, ये आपके साथ आती थोड़ा लेट आ गई। तो मैं इससे पूछा था कि लेट हो गई, वो मैडम के साथ जाना, मैंने ठीक है तो आधा घंटा में बता। बाकी ये अभी से जो न्यू ग्रुप आया उनके साथ जो है शायद पिकनिक बनाने गई थी, तो मैंने कहा यार ये वाला ग्रुप के साथ जो है बाद में ही जो है इसके साथ बना के ना, मैं इतना नहीं
नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इस ग्रुप को मत छोड़ना, तो यहाँ पे नहीं लगा थैंक यू वेरी मच। बाकी चीज से ठीक है, ये पढ़ता हूँ। थैंक यू। ये बात मैं अपने साथियों से कर रही हूँ। बहुत शिकायत सुन रहे हैं इनके परिवार से कि छुट्टी नहीं ले पाती थी। थोड़ा डाटा बता दूँ इनका, इनके पास शायद 10 ELP नहीं है। नो छुट्टी रिकॉर्ड, उसके बाद इतनी शिकायतें हैं। तो थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स ध्यान दें, सारी छुट्टियां खत्म कर चुकी है, तो मेरी तरफ कुछ भी आपकी शिकायत वैलिड नहीं है। लीजिए। थैंक यू सर, आपने अपनी बहुत सारी बातें मैम के साथ हमारी शेयर करी हैं। थैंक यू वेरी मच। की रोशनी को छुपाया नहीं जाता, सूरज की रोशनी को छुपाया नहीं जाता। दूरियां चाहे कितनी भी हो दोस्तों में, दूरियां चाहे कितनी भी हो दोस्तों में, चाहकर भी दोस्तों को भुलाया नहीं जाता, चाहकर भी दोस्तों को भुलाया नहीं जाता। और दोस्तों को यहाँ होना, ये उनकी दोस्ती की मिसाल है। दोस्ती का अर्थ क्या होता है? दोस्ती का अर्थ होता है दो हस्ती। जब दो हस्ती मिलती है तो दोस्ती बनती है। ये दो हस्तियां नहीं, इनके पास तो कितनी सारी हस्तियां हैं। खुद एक हस्ती है तो हस्तियों की हस्ती मिली हुई है, तो उन्हीं में से एक हस्ती को, उनके कदरदान को हम बुला रहे मीनाक्षी मैम के। Respected HOS ma'am, all the staff members of Uttam Raja School, the star of today, Meenakshi Bhatia and her family members. आज हम सारे यहाँ पर मीनाक्षी की रिटायरमेंट पार्टी पर एकत्रित हुए हैं। मैं मीनू को 1999 में मिली थी और तब से लेकर अब तक हमारा 26 साल का पुराना साथ है। हम दूर होकर भी दिल से सदा एक साथ रहे हैं। आज वो अपने दायित्व को पूरा करके रिटायर हो रही है। ईश्वर से दुआ है कि तुम हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, सभी टेंशन से दूर रहो। अपने इस नए जीवन में अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय करो। नए जीवन का लो तुम खूब सरूर, ईश्वर तुम्हें दे खुशियाँ भरपूर। लास्ट में एक छोटा सा आपके लिए, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी चले। थैंक यू। आज मेरी प्रिय सखी रिटायर हो रही है। लगभग 20 वर्ष का अनुपम स्वयं साथ, एक साथ विद्यालय जाना, मिलकर सारे दायित्व निभाना, हंसते खेलते घर वापस आना। उसके बाद भी 6 वर्ष तक बहनों साथ निभाना, हर सुख में हर दुख में। कभी सोचा न था कि इस विशेष अवसर पर मैं तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रहूंगी, पर वो क्या है न कि यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो थोड़ा जुदा बेगर्ज तेरा हो यार। सो क्या हुआ जो दूर है यार, पर सब बंधनों को तोड़ टेक्नोलॉजी के सहारे तुम्हारे पास ही हूँ मैं यार। देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सेवानिवृत्त के बाद की जिंदगी बहुत बढ़िया रहे। याद रखना, कई जीत बातें हैं, कई खुशियां बातें हैं। ये तो एक पन्ना था जीवन का, अभी तो किताब बाकी है। अपने अनुभव से बता रही हूँ, नौकरी के चक्कर में शायद हम लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते,
अब खूब एंजॉय करना। याद रखना, आज तुम्हारे साथ वास्तव में रिटायर हो रही है विद्यालय की सब जिम्मेवारियां। रिटायर हो रही है थकान, रिटायर हो रही है टेंशन, सुबह के अलार्म की घंटी, सीएल ईएल एलएन की गिनती, सभी कामों को समय पर निभाने की जद्दोजहद। अब आजाद हो इलेक्शन ड्यूटी से, सेंसस ड्यूटी से, सेमिनार से एंड सो ऑन ड्यूटीज से। अब अनुभव करोगी नई सुबह, नया जीवन, अलमस्त नींद, बालकनी में बैठ वर्षा का आनंद, चाय की चुस्कियों के साथ। अब लाइफ होगी विदाउट टेंशन, घर बैठे बैठे मिलेगी फुल पेंशन। अब मिलने वाला है पोते पोतियों, दोते दोतियों का असीम प्यार, घर परिवार के लिए असीमित समय, सारे के साथ भरपूर नया संसार, दोस्तों के साथ कभी भी बिना छुट्टी की टेंशन के जो तुम बहुत रहे पीछे घूमने जाने का उपहार। तो डियर, मजे लो अपनी सेवानिवृत्त जीवन के, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मीनाक्षी मैम, आई थिंक सो आप पहचान गए होंगे अपने डियर ममता मैम को। 1 मिनट में आपको दे रही हूँ। इतना प्यारा सरप्राइज दिया है, मैं बिल्कुल एकदम शॉक हो गई कि ममता ने ये भेजा है और तूने मुझे बिल्कुल भी इसका हिंट नहीं दिया। रियली वेरी 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 नाइस। मुझे मतलब तेरी इतनी कमी लग रही है, अगर तुम यहाँ पे होती ना तो हमारी और ही बात होती, लेकिन तुम ठीक रहो, स्वस्थ रहो, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है। दिल से दूर तो नहीं हो, बस ये कहूँगी। अभी एक और सरप्राइज है। लाइट्स एक बार ऑन कर दीजिएगा प्रवीण जी एंड मनीष सर। हमको बोला था कि आपके साथ बिल्कुल शेयर ना करें, तो वी केप्ट ए सरप्राइज नॉट ओनली फॉर यू
but to all our staff members. हम नहीं चाहते थे कि आपके कान तक भी ये बात पहुंचे कि ममता मैम आपके लिए कोई सरप्राइज कर रही हैं. अंजुला मैम, would you like to say something? क्योंकि अंजुला मैम ये सॉन्ग हम सबकी तरफ से मीनाक्षी के हैं. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे. तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार. मेरा गम मेरा गम, सॉरी, बीते दिनों की जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता. दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता. पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता. सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए. तस्वीर उनकी छुपा कर रख लो जहाँ जी चाहे. तस्वीर उनकी छुपा कर रख लो जहाँ जी चाहे. मन में बसी वो मूरत लेकिन छुपे न छुपाए, कहने को है पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद इंदु मैम. और अब मैं अर्चना मैम को आमंत्रित करूंगी. होकर आज आप यहाँ से चले जाएंगे, विदा होकर आज यहाँ आप चले जाएंगे. आशा है जहाँ जाएंगे खुशियाँ ही खुशियाँ पाएंगे. इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ.
पहले से रखते हैं। याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बातों से आंसू में थककर सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बातों से आंसू में थककर सो जाएंगे। सपनों में तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बिछड़ा हमें दिलबर, बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और तुम्हें लगे जीवन के डगर। बिछड़ा हमें दिलबर, बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और तुम्हें लगे जीवन के डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Thank you. Congratulations on your retirement. This is a big occasion for you, and we all are very, very, very proud that you have achieved this today. मुश्किल बताता रहता था कि आप उसको पढ़ाते हो, तो उसके ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। आई एम श्योर आपके बाकी स्टूडेंट्स पे भी इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा। एंड मैंने भी देखा आपको कि आप कितना मेहनत करते थे। स्कूल से आने के बाद आप बहुत डेडिकेटेड हो, मुझे दिखता ही है आपके काम से। आई थिंक आप इतना पैशनेट रहे हो इतने साल लगातार, कभी इस चीज़ की टेंशन, कभी स्टूडेंट्स को पूरा पढ़ा है कि नहीं, कभी रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कभी पेपर्स चेक हुए कि नहीं। एंड यू स्पेंड सो मच टाइम, your passion and your dedication together has led you to this movement. And जैसे रंजिता बोल रही थी, मेरे को ही बचपन से पढ़ाते थे, हमारी पढ़ाई के साथ साथ इतने सारे और स्टूडेंट्स की भी पढ़ाई का आप लोग ध्यान रखते हो। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ फॉर दिस अचीवमेंट। इतने सालों में आपने इतना कुछ अचीव किया है, एंड दैट इज ऑल कमिंग टुगेदर टुडे। आई जस्ट होप आपके रिटायरमेंट डेज बहुत हैप्पीली हो, आप बहुत एंजॉय करो और यहाँ आओ जल्दी से हमसे मिलने।
बस उसी का बेटा है। Yep, this is just the start. ये एक जर्नी का पार्ट है and you've successfully fulfilled that part. You've impacted more lives than you think. Not only we are proud, not only your friends, not only your supporting teachers. Today, all the students whom you've taught, they'll be so proud of you. And I hope कि आप भी अपने से उतना ही प्राउड हो, उतना ही खुश हो। आपने जो अचीव किया है इतने सालों में, इट्स नॉट समथिंग स्मॉल, इट्स बीन अ बिग थिंग एंड यू शुड फील दैट फॉर योरसेल्फ। ये छोटी सी 2 लाइन्स लगी हम लोगों ने आपके लिए। ना सिर्फ सिखाया मुझे, सिखाया इतने बच्चों को भी। तूफान हो या आंधी, आप झुके नहीं कभी। बैठा दूर जरूर हूँ, पर गर्व से ऊंचा रहता है मेरा सर। और रहता है उन बच्चों का भी सर ऊपर जिनकी लाइफ बनाई है आपने सुंदर। We wish you all the best for all your future endeavors. Stay happy, stay blessed, and we both love you. Bye. I would like to introduce to my staff members. कोई रिटायर होता है तो उसकी उपलब्धियों का थोड़ा सा गुणगान किया जाता है, क्योंकि ये जीवन भर की उपलब्धि होती है, सारी मेहनत होती है, अपना जीवन का सर्वस्व जो यहाँ न्यौछावर किया है उसका कुछ अंश मात्र है ये। आपका जन्म 18 मार्च 1964 को पंजाब प्रांत के ऐतिहासिक शहर जालंधर में हुआ था। आपकी माता जी श्रीमती भगवती आपकी संस्कारशाला रही हैं और पिता श्री स्मृति श्रेष्ठ श्री रोशन लाल बत्रा सफल व्यवसायी रहे हैं। आपके माता पिता सरल हृदय धार्मिक प्रवृत्ति वाले रहे हैं। ये सहृदयता आपके आचरण में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। आपका परिवार दिनांक 17 अक्टूबर 1988 को श्री विकास भाटिया जी के संग पावन परिणय उत्सव अंतर्गत जीवन पथ पर चलने का गठबंधन हुआ। 24 नवंबर 1989 को पुत्री रिमझिम के जन्मोत्सव के गीतों की संगीतमयी सुरीली ध्वनि ने सुखद बहुरंगी अतीत की अनेक स्मृतियों को जीवंत कर दिया। 10 नवंबर 1993 को पुत्र पुष्कल के जन्म के साथ ही गृहस्थ आश्रम के अनंत वाङ्मय का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। वर्तमान समय में आपके पुत्र पुत्री नामचीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। आपके पुत्र पुष्कल जी से परिवार अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में बसे हुए हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके अपने शहर जालंधर में हुई। माध्यमिक शिक्षा 1978 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रथम श्रेणी से पूर्ण हुई। उच्च माध्यमिक परीक्षा आपने सन 1980 में CBSE से प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की। गणित में आपने स्नातक ऑनर्स उपाधि सन 1983 में हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में लब्ध की। परिवार में एकमात्र संतान होने का दायित्व बोध को समझते हुए आपने शिक्षा यात्रा को अनवरत जारी रखा। दिल्ली विश्वविद्यालय से सन 1985 में MC की उपाधि प्रथम श्रेणी अर्जित की। आपने अपने सरकारी सेवा काल का आगाज दिनांक 17 जुलाई 1987 को सर्वोदय कन्या विद्यालय अलीपुर से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका यानी गणित से किया। यहीं से स्थानांतरण कर आप सर्वोदय कन्या विद्यालय उत्तम नगर के पद पर स्थापित हुई। उसके तदुपरांत आप 1999 में सरप्लस होकर हमारे विद्यालय उत्तम नगर में पदभार ग्रहण किया। वर्ष 1999 से आज तक आप यहीं पर कार्यरत हैं। आपके समर्पण व छात्र हितार्थ किए गए भागीरथी प्रयत्नों को हमारी टीम ने का आपको हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन। आज दिनांक 27 मार्च 2024 को आपके शिक्षा निदेशालय से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका के पद से सफलतापूर्वक सेवानिवृत्त हो रही है। आपकी सहजता सरलता आपको विरासत में मिली है। ऐसी सहज सरल कर्मयोगी को हमारा सत नमन। छात्र आपने सदैव सजग रहकर कार्य निष्पादन किया। छात्राओं की जिज्ञासा को आपने स्वयं कलांत होकर शांत किया। आपके सभी सहकर्मियों के साथ मधुर और सहयोगपरक संबंध रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सब लोग आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं और समय सीमा कम है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सबको मौका दें। आप
आपके सहकर्मियों के साथ व्यवहार आपका जमीन से जुड़ाव साबित करता है। आपकी कार्यशैली इंगित करती है कि आप गौरवशाली संस्कारशाला से निकली हैं। हितधारकों के प्रति आपका समर्पण अतुलनीय है। आज दिनांक 27 मार्च 2023 को वसंत ऋतु पूर्णमांत महाचैत्र तिथि कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ के नक्षत्र में सत संवत 1945 को 36 वर्ष 268 दिवस यानी आपने 13,408 दिन हो गए आपको कार्य करते करते कि राजकीय सेवा उपरांत आपकी सेवानिवृत्ति की इस भावभीनी बेला पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उत्तम नगर नई दिल्ली परिवार की ओर से आपको तथा आपके परिवार को सुखद भविष्य की अशेष शुभकामनाएं। स्वस्ति ते पंथान संतु। ईश्वर आपको स्वस्थ सुखी एवं समाज को समर्पित जीवन प्रदान करें, ऐसा हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की सभी अध्यापिकाएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि मीनाक्षी मैम को ये प्रशस्ति पत्र प्रदान करके गौरवान्वित करें। I would like to invite हम सबकी तरफ से है, तो हमारे विद्यालय परिवार की जितनी अध्यापिकाओं तक मेरी आवाज जा रही है, स्टेज पर आ जाइए। ये आपके सामने आ रहा है हमारा बड़ा और सुखी से बिजली चमके जब जब तुम मुस्काती है, सारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते
कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। सामने टीचर में चला गया चेक करो। अच्छा आजा हो गया मैम? नहीं शूटिंग करने थे एक और खींच यार। मैम सामने आई होप जितने भी गिफ्ट थे हम एक दूसरे से शेयर मीनाक्षी मैम से कर। मैम इसके अंदर वेट ऐसे ही गल सुन लारिया वे आ लोग मेरे ते हसदे, पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर देगा तो दस दे। सुन ला वे तुसी मचाई दी आ फोटो वे फरारी लाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे लारिया वे, चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे आदि गड़ी दे नाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे आदि गड़ी दे नाल दी। उसका पंगे लगदे आऊं चंगे लगदे ताई सोचा कुड़ना तवा, सोचा शरिया मोदा सोचदियां मैं ओदा रोटी ते तू बनदा, सोचदी बेकार दी मैं बैठ मदे नाल दी मैं को होर कोई सवाल ओ देख के ता मेरी हो जवे ओ मेरे पति दे नाल दी। चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे आदि गड़ी दे नाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे आदि गड़ी दे नाल दी।
प्यार का मरा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों। थैंक यू। तुम्हारे प्यार का मरा है सपनों से मिलना, दोस्तों से, अपनों से, सपनों से, छूटे ख्वाबों से, उगते सूरज से, नीले आसमान से, चांदनी रातों से, ठंडी हवाओं से, चांदनी रातों से और ठंडी हवाओं से तुम हमें याद आओगे, पर तुम हमें याद न करना, पर तुम हमें याद न करना। और वो मीनाक्षी मैम को सुना रही हूँ। तो मीनाक्षी मैम, this is just for you. You fulfilled all your professional ambitions. Now it is time to achieve your personal aspirations. Retirement is the start of life's golden phase. Give your childhood dreams one final chase. So happy retirement to Meenakshi ma'am. And now, as our farewell party is about to end, I would like great honor and respect. I would like Meenakshi ma'am to come on stage to share her final thoughts with us. She embark on this new chapter of her life. Stage. Please stand up, all of you, and give a big hand of applause. जोरदार तालियां मीनाक्षी मैम के लिए। इतना अच्छा तो मैं नहीं लिख सकती जितना इन सबने बोला है। मेरे पास इतने शब्द भी नहीं है कि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं, जो आपने मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना सम्मान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतना इतना प्यार तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रही थी मेरे लिए, इतना प्यार जो अभी सबने बोला ना मुझे डेडिकेट करने के लिए कि मेरी जिंदगी सवारी, मैं इन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ सबको, कि मेरी जिंदगी महकाई, मुझे गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाट से उठा के, 11 हमारी गाड़ी को मैंने तो खुदा माना। सच में इतना प्यारा समा बांधने के लिए आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना कहूँगी, इतने काबिल तो ना थे हम दोस्तों, तुमने पलक पे बिठाया, मजा आ गया। तुम्हारी इस प्यार की बरसात ने मेरा दामन भिगो दिया, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे हैंडल करते हुए। इतना प्यारा स्वागत मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैम नहीं है बट मैम ने भी बोल दिया जो बोलना चाहती थी। एक स्पेशल थैंक्स मैम के लिए है जिन्होंने मुझे मेरा ये करियर पूरा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मैं VLS लेना चाहती थी। घर में भी ऐलान हो गया था मैंने VLS लेंगे, जैसे मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया, मैम ने भी बोला कि VLS लेना चाहती थी। तो घर में हस्बैंड ने बहुत समझाया, लेकिन उनका समझाना तो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी बात कह दी जिससे वो फंस गए। मैंने बोला कि मैं अब नहीं कर सकती जॉब। हस्बैंड ने बोला कि पहले इतनी लाइफ एक्टिव थी, बच्चों को देखना, बड़ों को देखना, सैलरी भी बहुत कम थी, फिर भी अब पूरी जॉब करी, कभी नहीं सोचा। अब जब कोई बर्डन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम घर में आकर के कुछ काम ज़्यादा करना है, और सैलरी भी बहुत अच्छी है, बस ये बात कहने की थी कि सैलरी भी बहुत अच्छी है, फंस गए ये तो। मैंने कहा आपको सैलरी नहीं मिली है कि मेरी सैलरी अच्छी है इसलिए मैं अपनी हेल्थ के ऊपर लेती जाऊँ और मैं जॉब करती जाऊँ। बोले भैया हाथ जोड़ दो, कल की बजाय आज जाके दे दो। तो नेक्स्ट डे मैम को बोला कि मैम बस अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं VLS के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बट मैम ने मुझे स्कूल में भी टाइम मिलता नहीं कुछ ऐसी बातें करने का, सिर्फ दीक्षा पे जो इकट्ठे जाते हैं उसी में कोई मैम से बात हुई। मैम ने काफ़ी कुछ समझाया, बड़ी लंबी बातें हैं, यहाँ पे इतना लंबा टाइम नहीं लूँगी मैं, लेकिन जो भी मैम ने कहा
उससे मैंने अपना निर्णय बदल लिया। तो जो आज का दिन है वो मैम के ही इससे है कि मैं 60 साल पूरे करके अपनी रिटायरमेंट ले रही हूँ। तो कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है, मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकती लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को ही वो किया है। तो मेरा माइंड जब चेंज हुआ तो मुझे लगा कि चलो ये अगर मुझे लगेगा कि मैं नहीं कर पा रही तो बीच में कभी दे दूँगी, लेकिन मेरा ये 1.5 साल बहुत अच्छा निकला। जब मैंने 99 में यहाँ पर ज्वाइन किया था तो जो भी मेरे फ्रेंड्स बने जो आज आए हुए हैं सभी एज ग्रुप सेम एज ग्रुप के थे, तो बहुत ही अच्छा रहा। एक बहुत ही प्यारा सा बंधन बन गया सबके साथ, इतना प्यार हो गया आपस में कि जब स्कूल का टाइम 12:30 से चेंज हो गया 2:30 बजे तक का हो गया, तब भी कोई अपने घर के पास के स्कूल में जो 12:30 तक था कोई ट्रांसफर करवाने को तैयार नहीं हुआ। ये हमारी दोस्ती सबसे पक्की है, ये दोस्त फिर नहीं मिलेंगे, चाहे 2:30 बजे रुके चाहे 3 बजे रुके, रहेंगे तो इकट्ठे ही। लेकिन वक्त है, ये वक्त तो किसी को साथ रहने ही नहीं देता। वक्त बीता, धीरे धीरे कोई सरप्लस हो गया, कोई ट्रांसफर तो नहीं, कोई प्रमोट होके चले गए, कोई मेरी फ्रेंड ममता जिसका भी आपने सुना उसको BLS मिली, कोई प्रॉब्लम थी उसको, तो इस तरह से सब लोग धीरे धीरे दूर होते चले गए, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं हुए। वो तो आज आप देख ही रहे हैं, ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मेरी पुरानी फ्रेंड्स हैं। उसके बाद एक टाइम आया जब अब भी हम जो है थोड़े सेम एज ग्रुप के कुछ लोग हैं यहाँ पे सब बैठे हुए हैं जो मेरी एज ग्रुप के हैं, तो उनके साथ तो पुराना प्यार है ही है। लेकिन कोई 1.5-2 साल पहले एक प्यारे बच्चों ने, नई जनरेशन के प्यारे बच्चों ने ज्वाइन किया, जो मेरे लिए तो बच्चे ही है लेकिन वो कुलीग भी रहे और मेरे साथी भी रहे, मेरे फ्रेंड भी रहे, सब कुछ बन के रहे ये लोग। मतलब जब ये लोग आए ना तो मुझे लगा कि सब बच्चे हैं, कहाँ इतना कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। जो पहले ग्रुप होता था वो तो अलग ही बात होती थी। मतलब इतना एज गैप, इनकी स्टार्टिंग और मेरी जॉब का एंड, इतना बड़ा ब्रिज पार करना मुश्किल ही लगता था, पर इन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि वो उम्र के फासले कब खत्म हो गए, वो उम्र का ब्रिज कब टूट गया पता ही नहीं लगा। मतलब ये तो एक अपने ग्रुप की बात है, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठते हैं, जहाँ हम अपना लंच शेयर करते हैं, जहाँ हम फ्री पीरियड में बैठ के एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, उनकी बॉन्डिंग आप सबको ही पता है कि एक अलग सी बन जाती है। लेकिन मेरे उत्तम नगर नंबर 2 का स्टाफ, द बेस्ट, इतना प्यार सबने दिया, कहीं से भी गुजर जाओ, मीनाक्षी मैम क्या हो गया, देखा नहीं, हेलो कैसे हो, मतलब मैं नहीं भी देखूं तब भी स्टाफ रूम से भी आवाज आ जाती थी, मीनाक्षी मैम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, और कुछ ना कुछ छेड़छाड़ी ये लोग कर देते थे। अनीता इस रूम में बैठे छोटे बच्चे, मेरा बर्थडे था 19 मार्च को, तो उसके बाद से इन्होंने बोला जब तक रिटायरमेंट डे नहीं आ जाता तब तक बर्थडे बनेगा, रोज मुझे मिलके हैप्पी बर्थडे, रोज मिलके कि आज बोलेंगे हैप्पी रिटायरमेंट डे। तो इतना मतलब प्यार और इतना सम्मान देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आपका कैसे थैंक्स करूं। तो कल तक जो था वो तो मतलब मैं वैसे पहले किस का नाम लूं, किस ने इतनी प्यार और रिस्पेक्ट दी, सभी मेरे दिल में ही बसे हुए हैं। सबका, पूरे स्टाफ में से हर एक फ्रेंड का मेरे दिल में एक अलग जगह है। सब लोग जितने भी बैठे हैं सबके साथ एक अलग बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो मन जो है बहुत अजीब सा है। कल तक मुझे बहुत खुशी थी कि अरे भाई मैं रिटायर हो गई, कल लास्ट डे है, पर आज जो है ना वो दिल बेईमान हो गया है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। ऐसा लग रहा है कुछ वक्त और मिल जाता तुम सबके साथ बिताने का, लेकिन क्या करें, अब कुछ भी हो सकता। दिल ना माने मगर आज जाना भी है, आने वाले जीवन को नई खुशियों से अपनाना भी है। सामने है कड़ी एक नई जिंदगी, पीछे गुजरा हुआ एक जमाना भी है। तो इस गुजरे हुए जमाने की बहुत सी प्यारी प्यारी यादें लेकर आपसे मैं विदा ले रही हूँ।
2 लाइन और है। यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, हम तो जा रहे हैं पर आप सबको बहुत याद करेंगे। और आपके लिए एक गुजारिश है, जो नजरों से दूर हो जाएं उन्हें दिल से दूर मत करना, जो नजरों से दूर हो जाएं उन्हें दिल से दूर मत करना। कभी यूं ही बैठे बैठे मेरी याद आ जाए तो मिलने की दुआ करना, यूं ही बैठे बैठे कभी मेरी याद आ जाए तो मिलने की दुआ करना। आपकी दुआएं असर करेंगी और मैं ज़रूर मिलने आऊँगी। आप सबसे जो नाता जुड़ा है वो कभी भी नहीं टूट सकता। जब भी आप मुझे याद करोगे ना मैं आ जाऊँगी, लेकिन आपने टिकट फ्री कर लेना। ये रहा कि मैं आऊँ और आप टिकट मैं आपसे पूछ रही कि मैं बुलाए या ना बुलाए। थैंक यू वेरी मच। कुछ एक दो लाइन थी जो मैं अपनी स्पीच में वो नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ऐसे कभी लिखी मैंने 2 लाइनें, तो वो वैसे ही बताती हूँ कि आने वाले वक्त से कुछ वक्त चुराना है, जो वक्त ना मिल पाया जो वक्त ना मिलने के कारण जो वक्त ना मिल पाया उस वक्त को बुलाना है। आने वाले वक्त से अपने लिए अब कुछ वक्त चुराना है। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे।